অজয় ৰায় ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সন্মানীয় কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক দুআষাৰ ভাষণ ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন আজি ইয়াত উপস্থিত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে ত্ৰাণকৰ্তা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, ইয়াত উপস্থিত কমতাপুৰ স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী গকুল বৰ্মন ডাঙৰীয়া, চিৰাং জিলা আমাৰ বিজেপিৰ সভাপতি বিপ্লৱ চৰকাৰ প্ৰমুখ্যে সকলো বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা, বিমল অছৱাল ডাঙৰীয়া, নেশ্যনেল কাউন্সিল মেম্বাৰ বিনোদ গণ্ডিয়া ডাঙৰীয়া, কোকৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰভাৰী অজয় কুমাৰ ৰায় আমাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ ইয়াত উপস্থিত হৰিলাল বায়ন, সভাপতি নৱ কলিতা প্ৰমুখ্যে সম্পাদক বিষয়ববীয়াসকল, ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজসকল, আইসকল, আমি সকলোকে আমাৰ অন্তৰ ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 2014 চনৰ পৰা আমি যি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আৰু 2016 চনৰ পৰা আমাৰ অসমত আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত বিশেষ নেতৃত্বত আমি অসমত অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিকে ধৰি যি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ। এই 5 বছৰে যোৱা 5 বছৰে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে অসমত উন্নতিৰ জোৱাৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসমৰ উন্নয়ন কেৱল সম্ভৱ হৈছে কেন্দ্ৰত থকা মোদী চৰকাৰ আৰু অসমত থকা বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। এই মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমি যোৱা 5 বছৰে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকক আমি সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাইজক এটা আশ্বাস দিছে, অহাবাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত অসমক বানমুক্ত কৰিব। বানমুক্ত অসম হিচাপে আমাৰ যি অধিক বানপানীৰ সমস্যা, এই বানমুক্ত অসম হিচাপে গঢ়ি তুলিব। ইয়াৰ উপৰিও এটা কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ চৰকাৰে অৰুণোদয় দিছে। অৰুণোদয় আপোনালোকে সকলোৱে পোৱা নাই, পাইছেনে? সকলোৱে পোৱা নাই। এইবাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিক 830 টকা নহয় 3000 টকা পৰ্যন্ত অৰুণোদয় দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকেই অৰুণোদয় পাব, প্ৰত্যেকেই অৰুণোদয় পাব। আপোনালোক আজি বন্ধনৰ ঋণ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণত ডুব গৈ আছে। সকলোৰে ঘৰলৈ সদায় সপ্তাহত এবাৰ তাগিদা আহে। এইবাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি নিৰ্ণয় কৰিছোঁ সকলো ঋণ চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব। আপোনালোকৰ নামত থকা ধাৰ আপোনালোকে কোনেও পৰিশোধ কৰিব নালাগে। প্ৰত্যেকটো ঋণ চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব আৰু আপোনালোক ঋণমুক্ত হ'ব। আজি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত মই কওঁ এডমিশ্যন ফ্ৰী, আপোনালোকৰ ইউনিফৰ্ম ফ্ৰী, কিতাপ ফ্ৰী, সকলো ফ্ৰী। এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যেতিয়া স্কুললৈ যাবলৈ ওলাই ভাড়াৰ কাৰণে, স্কুললৈ যাবলৈ বাছৰ ভাড়া, টেম্পুৰ ভাড়াৰ কাৰণে বহুতে স্কুল এৰিব লগা হয়, কলেজ এৰিব লগা হয়। কলেজলৈ যোৱা প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি প্ৰতিদিনে 100 টকাকৈ দিম, 100 টকাকৈ প্ৰতিদিনে দিম। এই আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আৰু বহু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমি ব্যক্ত কৰিম। এতিয়া মহামান্য আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য আছে, মই আৰু বিশেষ ক'বলৈ বিচৰা নাই। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে ত্ৰাণকৰ্তা।
তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি আজি অসমত যি চৰকাৰ চলাইছো তেখেতে যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিছে তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ মিত্ৰজোঁট আমি বিজেপি এজিপিকে ধৰি আমি বৰ্তি আছো। আমি আশা কৰিছো ইয়াত যিজন প্ৰাৰ্থী ইয়াত ইতিমধ্যে আমি থিয় কৰাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা অজয় কুমাৰ ৰায়ক আমি বিজনী বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দি অহা 6 তাৰিখে আমি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব। সকলো একত্ৰিত হওক আৰু একমুঠে আমি অজয় কুমাৰ ৰায়ক ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব। মই আৰু বিশেষ নকওঁ, সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো, ভাৰত মাতা কি অমৃত শাহজি জিন্দাবাদ, অমৃত শাহজি জিন্দাবাদ। অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মহাকাংক্ষিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অসমবাসীলৈ আহি আমাক যি বহুমূলীয়া ভাষণেৰে আমাক উদ্ধৰ্ত কৰিব, সেই মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ হৈ আপোনালোকক থিয় হৈ হাত চাপৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আৰু তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। बैठ जाए। अरे बैठ जाओ भैया, पीछे दिखाई पड़े, बैठ जाओ सब लोग। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बिजनी वालों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? मोदी जी दिल्ली में है, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि असम में फिर से भारतीय जनता पार्टी और गण परिषद की सरकार बन रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, अजय आगे आओ। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अजय कुमार रे, सब लोग अजय भाई के लिए ताली बजाइए भाई। असम सरकार के मंत्री और मेरे मित्र भाई केशव महंत जी, श्री विप्लव जी, श्री विनोद गोटिया जी, श्री बिमल ओसवाल जी, श्री हरिलाल जी, श्री अश्विनी राय जी, बिजनी की रैली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पहुंचे लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहां पर बोडोफा यूएन ब्रह्मा और गुरुदेव मदराम ब्रह्मा जैसे बड़े नेताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद का सरकार मैंने कहा था हम आंदोलन मुक्त आसाम बनाकर देंगे। मैंने कहा था गण परिषद और मित्रों, आज तीनों वादे पूरा कर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आई है। गुमराह नौजवान मारे जाते थे मगर कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको तो सबको लड़ाने में मजा आता है। बोडो और नॉन बोडो, अपर आसाम, लोअर आसाम, आसाम और बंगाली ये झगड़े लगाते थे, मगर आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 ही साल में
बोडोलैंड समस्या का हमने निपटारा करा। 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आसाम आतंकवाद मुक्त बनकर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं आज आपको वादा करने आया हूं और मेरा संदेश ठेठ बोडोलैंड तक भी पहुंचे। भारत सरकार ने बोडो समझौते में जो जो वादे किए हैं, एक एक वादे को 2022 के पहले हम पूरा कर एक शांत आसाम का निर्माण करने का काम करेंगे। मित्रों, शांत आसाम का निर्माण 5 साल के अंदर है। हमारे असम के युवाओं पर गोलियां चलाकर सैकड़ों युवाओं की जान ली थी। आज वही कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर चढ़कर आई है। मैं पूछना चाहता हूं को क्या अधिकार है असम के अंदर वोट मांगने का? और कुछ कमी रह गई थी तो बदरुद्दीन के कंधे पर चलकर आए हैं, अब आप घुसपैठ भी करा लेना। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, असम के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? माताएं नहीं बोल रही है, बहनें नहीं बोल रही है, बताइए रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अब जो पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। ये राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? बोडो है। अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना हो लग लो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर हिंसा का युग बोडोलैंड समझौता किया और हमने समझौते के तहत 2/3 वादे इतने 6 महीने के समय में समाप्त कर दिए हैं। बीटीएडी के क्षेत्र में जनजातीय बहुल आबादी वाले गांवों में शामिल करने के लिए एक आयोग बना दिया है। बीटीसी की सीटें बढ़ाने के लिए एक आयोग बना दिया है। बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का गठन भी हमने कर दिया है। आत्मशाले युवाओं के पुनर्वास के लिए 4-4 लाख रुपए की सहाय देने का काम हमने कर दिया है। बोडो भाषा को राज्य की सहभाषा का दर्जा देने का काम हमने कर दिया है और 750 करोड़ रुपए का पैकेज भी हमने दे दिया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा समाप्त करना नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद समाप्त करना नहीं चाहती थी। ये कांग्रेस पार्टी कभी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी। मित्रों, हमने ये डबल इंजन सरकार के माध्यम से आसाम को ये तरुण गोगोई, बजरुद्दीन और आज राहुल गांधी की सरकार ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 66,000 किसानों को 60 करोड़ रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए। तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है।
गुवाहाटी में नया टर्मिनल बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फूड पार्क बन रहा है, जोकीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और मोदी जी ने 1,06,000 आसाम के बासिंदों को जमीन का पट्टा देकर उनको जमीन का मालिक बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, हम घुसपैठ रोके इतना ही नहीं, ये काजीरंगा का जंगल है, आसाम का गौरव गैंडा, वहां बड़ी सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने काजीरंगा की जमीन को, भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर गैंडों के शिकार को रोकने का काम किया है। मित्रों, आज कोई घुसपैठिया काजीरंगा की जंगल के में अंदर नहीं। हमने मेडिकल कॉलेज बनाना लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराकार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में इसकी शुरुआत करी है। एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है, जिसे कैंसर के इलाज के लिए किसी को दिल्ली या कलकत्ते या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख, हर किसान को अब 10,000 रुपया मिले, हर साल मिले, ऐसी व्यवस्था करी है। मित्रों, यहां बहुत सारी माताएं बहनें हैं। बच्ची जब बड़ी हो जाती है, आपको चिंता होती है ना पढ़ाई लिखाई की, होती है या नहीं होती है, बताइए। हमने तय किया है, आप कमल छाप की सरकार बना दो, बच्ची कॉलेज में दाखला लेते ही हर बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर बच्ची को स्कूटी देंगे, कॉलेज पर बैठकर तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए जाएगी, अपनी माता को पीछे बिठाकर सब्जी और मछली लेने भी वो चली जाएगी। मित्रों, हमने तय किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगारी 2022 तक देंगे। सार्वजनिक अस्पतालों में बिस्तर की संख्या 2 गुना करेंगे, एक SEZ विकसित करेंगे। बाइक पर भी मित्रों, हमने तय किया है कि चाय मजदूर के श्रमिक वेतन में बढ़ोतरी कर उसको 350 रुपये तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ढेर सारे वादे हमने किए हैं, मगर मैं आपको इतना ही कहना आया हूं, चुनाव 2 खेमों के बीच में, एक और आसाम और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार दूंगा, अरे बदरुद्दीन बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो कि आसाम को घुसपैठियों का अड्डा? कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस चुप्पी बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकरदेव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाह आया हूं। ये अजय एक सच्चा लड़ाका कार्यकर्ता है, इसको एक बार विधायक बनाओ
पूरे क्षेत्र के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये दिन रात आपके बीच में रहेगा। मुझे बताओ, कमल फूल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, बटन दबाओगे? अजय कुमार राय को जिताओगे? बाढ़ मुक्त आसाम बनाओगे? घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाओगे? बदरुद्दीन और राहुल गांधी को हराओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতক শলাগৰ সাৰাই আগবঢ়াবলৈ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চিৰাং জিলা সভাপতি